Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again. And we've just progressed through the governance, also the risk assessment and client acceptance and continuous phase of the SOQM. And now we have come to the segment which is most important. Although every aspect of the SOQM is important, but this is the phase where actual performance is being done. This is the place where the outcome of your work, the way you are adherent to the quality, कि आप quality standard किस तरह समझते हैं, किस तरीके से engagement perform करते हैं, that is something that is actually leading an auditor to the consequences. Okay. At end of the day, जब audit खत्म होता है, उसका review होता है, QCR होता है, AOB आता है, they mostly look at the fact कि आपने audit कैसे किया, आपने रिव्यू कैसे किया, आपने अदर assurance engagements कैसे की, आपने related services कैसे की, how you have ensured that you have performed your audit in accordance with the requirements of relevant ISAs as applicable in Pakistan and relevant ethical requirements and other requirements that an auditor is required to adhere during the course of his audit. तो सबसे बेसिक बात ये कि to do an audit, a quality audit, what is the first thing that you will be looking at? कि जिन लोगों ने ऑडिट करना है, आया वो समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं एंड दे आर दे रेडी टू फुलफिल their responsibility for quality audit. Nature, timing, and extent of direction and supervision and review of the work performed is appropriate based on the nature of and circumstances of the duty. That means to say पहले तो ये आ गया कि जो लोग engagement पे मौजूद हैं, do they understand their roles and responsibility? Second one is इनको समझ तो आ गई, but during the course of their engagement, are they performing their work up to the mark? उनको कोई direction दी जा रही है? Is there any supervision of their work? Is there any documentation review that is being performed? And best of all, engagement partner is acknowledging its responsibility, overall responsibility of engagement or not. वो एक बेसिकली लामा इकबाल का शेर है ना कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे, तो अगर ऑडिट के अंदर कोई क्वालिटी का इशू आता है तो बर्फ गिरती है तो बेचारे एंगेजमेंट पार्टनर पे. सो एंगेजमेंट पार्टनर हैज a very significantly enhanced role after the revision of ISA 220. और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई ना सिर्फ इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर that engagement audit opinion or the review conclusion is in called वो ठीक है, बल्कि quality of engagement भी थी लेकिन भी ठीक है. इसको third one objective, that is the most important objective, or this is one of the key area due to which ISQC1 has been converted into SOQM. Which one is that? The engagement team exercise appropriate professional judgment and when applicable professional skepticism. अभी सर जैसे ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि कंटिन्यूसली डिस्क्लोज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, गोइंग कंसर्न का इशू है या नहीं है. फिर उन्होंने थोड़ा फर्दर भी एक्सप्लेन किया कि वो इनका कंक्लूजन ठीक था लेकिन ऑडिट फाइल के अंदर थिंक वो नई रिक्वायरमेंट. सो ऑल दैट थिंग बिकॉज एक चीज जो रिव्यूज अब क्यूरिटी वाले भी मौजूद हैं, दे विल सेकंड मी, एक पर्टिकुलर नोशन होती है बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के इफ एनीथिंग दैट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड दैट्स नॉट डन. कि बेशक आपने किया हो, आपने जरूर किया होगा, लेकिन अगर आपने फाइल पे नहीं डाला उसको तो ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट आपने वाकई वो चीज परफॉर्म की है कि नहीं की. Consultation requirements, this is also something that was there earlier, लेकिन अब इसको भी हाईलाइट करते हैं कि considering
How many auditing scandals are there in the world? How much auditor have been subjected to onslaught of the regulators? एक चीज जो रियलाइज हुई है सबको कि ऑडिटर बेचारे से ये एक्सपेक्ट करना कि उसको सब कुछ आता होगा, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज you can know a bit about everything, but you are not expected to know everything about a bit. That needs required a specialized knowledge, और ऐसा नॉलेज किसी ऐसे बंदे के पास जो शायद जिसको ज्यादा रिसोर्सेज हैं, so that engagement team can consult them on a contentious issues and they can provide engagement team with a comfort कि आप लोग जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, या आपका जो जजमेंट है या आपका जो कंक्लूजन है उसके अंदर कोई चेंज करने की जरूरत है या उसको इन्हांस करने की जरूरत है, या आपकी डॉक्यूमेंटेशन को किसी तरह की मॉडिफिकेशन की जरूरत है। दैट इज अ कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट दैट इज देयर। और ये एक एसेंशियल एस्पेक्ट है जो एसओकेएम नहीं किया है। तो प्रोफेशनल जजमेंट वो आगे फिर हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हाउ द प्रोफेशनल जजमेंट कैन बी डन, बट कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट ये थोड़ा सा मैं इस पे स्ट्रेस करना चाहूंगा क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और इट विल आल्सो डिपेंड द साइज ऑफ द फर्म इज। जैसे अमीन बता रहे थे कि बाज़ औक़ात ये है कि द फर्म हैव डू नॉट हैव रिसोर्सेज, तो कुछ जगह पे ये चीज आप आउटसोर्स कर सकते हैं। So consultation requirement is one of the things where you can avail the services of a service provider like that कि आप तीन चार फर्म मिलके कोई एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बन जाए, या आई कैप को आप अप्रोच कर सकते हैं for that matter. There is a difference of opinion within the engagement team or between the engagement team and EQCR are resolved. ठीक है, अमीन जब अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उन्होंने एक अपने असेसमेंट के अंदर भी एक चीज का जिक्र किया कि फर्म के क्या कंट्रोल है कि जब तक EQCR हाँ नहीं कहता या EQCR क्लियरेंस नहीं देता तो वो ऑडिट रिपोर्ट इशू हो रही है कि नहीं हो रही। क्या कंट्रोल है कि जब तक EQCR को क्लियरेंस नहीं देगा तो ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं होगी, और क्या प्रोसेस है फर्म का कि EQCR किस बात पे एग्री नहीं कर रहा था, तो एंड हाउ दिस डिफरेंसेस हैव बीन रिजॉल्व्ड। After the most, it's also one of the most important engagement documentation is appropriately assembled and retained on a timely basis. Appropriately assembled and retained on a timely basis. So anyone, any idea what's the basic requirement under ISA? कि file assembly period कितना है? 16 days from the date of audit report, and audit report ये issuance से पहले क्या criteria है? When can an auditor issue an audit report? When he has obtained either as an assurance, that financial statement or income material. Okay, that mean to say कि when he has all the evidence, ठीक है, ऐसा उसमें तीन चीजें हैं कि he has all the evidence, he has the financial statement authorization, and he has reviewed the all documentation. So this is something cash here, because there is a general perception that audit documentation can be assembled within the period of 60 days. But the thing is that Within the period of 60 days from the date of audit report, फाइल उसके बाद आपको बंद कर देनी होती है, फिर उसको खोल नहीं सकते। लेकिन इंटरनेशनली रेगुलेटर्स का उसके ऊपर there is a concern that what kind of documentation that you can do after the date of audit report. Is it a new conclusion that you can draw? Is it a new work paper that you can do? Is it something that you can put your sign on as a review? It's only that kind of a administrative document. So this is also a very important aspect of the engagement performance quality objective कि आपकी जो data ये retain कर रहे हो सर रिटेन पे आप जी रिटेन ये कि अभी कुछ अर्से पहले आईकेएप की एक पॉलिसी आई थी जिसमें उसने क्यूएबी का फ्रेमवर्क चेंज किया, और उसने कहा कि जो एंगेजमेंट ऑडिट है और ऑडिट रिव्यू है उसकी फाइल ऑडिटर
कम से कम 10 साल रखेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। जी, सो दैट मीन टू से कि फर्म की फिर उस तरह पॉलिसीज होनी चाहिए कि वो ये मेक श्योर करे कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है दैट इज रिटेन्ड इन अ सेफ प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। पहले ये इससे पहले 6 साल थी, अब जो नया क्वालिटी अश्योरेंस का फ्रेमवर्क आया दैट हैज बीन चेंज फ्रॉम 6 year to सो अगर मैं समराइज करूं पूरे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस साइकिल को, इट्स ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द असाइनमेंट ऑफ द स्टाफ के स्टाफ को पता है कि मैं ऑडिट क्या करूंगा, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फुलफिल कर सकते हैं। जो रिसोर्सिंग की बात हो रही थी कि क्लाइंट एक्सेप्टेंस के टाइम पे आपको पता है कि आपके पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो ऑडिट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास देयर इज एडिक्वेट सुपरविजन रिव्यू, जैसे से एंगेजमेंट का वर्क चल रहा है वो टाइमली उसको रिव्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा। प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज हो रही है, हाउ इट इज बीइंग इंश्योर्ड दैट द प्रोफेशनल जजमेंट इज बीइंग एक्सरसाइज्ड। कंसल्टेशन हो रही है और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को कैसे आगे लेकिन फिर एप्लीकेबल हो गया पर कानून जी सर 10 years का एप्लीकेबल जी सर एक बार आ गया आगे फ्रेमवर्क आ गया और छह की बजाय 10 हो गए। अब रिटेंशन पॉलिसी में ये भी एक बात है कि आप ना सिर्फ रिटेन करेंगे बल्कि आप मेक श्योर भी करेंगे कि रिटेंशन पीरियड जब खत्म हो गया तो आप उस फाइल को फिर डिस्ट्रॉय कर दें। दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द रिटेंशन पॉलिसी। then again policy this वही बात है कि when you have a staff that is required to perform at a certain level, the risk is that they are not equipped and they will not perform. They don't have sufficient time in appropriate environment and audit. Professional students follow नहीं करते, they follow their own kind of mind during the course of audit. Nature coming extended details suppose this year there is actually it's being drafted in a way कि जो भी आपका क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है उसको अगर आप रिवर्स साइड से देखेंगे दैट इज द रिस्क कि ये चीज नहीं हो रही, दैट इज द रिस्क। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आपने अचीव करना है, द रिस्क इज दैट इट इज नॉट बीइंग डन एंड ऑब्वियसली एसोसिएटेड रिस्क विद दैट। ठीक है, यूजमेंट टीम जजमेंट नहीं कर रही, दैट मींस उसका रिवर्सल ये है कि they accept whatever the client tells them to. Normally there are situation जहाँ पे ऑडिट पे ये होता है कि क्लाइंट से आप इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन दे देते हो आपको लगा के फाइल में, बट इज दैट रिप्रेजेंटेशन इज अ वैलिड ऑडिट एविडेंस। एंगेजमेंट टीम ने मैनेजमेंट को चैलेंज किया है कि आपसे जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो एविडेंस दे रहे हैं, इज इट करेक्ट, इज इट अप्रोप्रिएट, इट इज सफिशिएंट इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। क्योंकि अभी सर आप इसको थोड़ा सा मैं करूंगा, अभी आप रेफर दे रहे थे कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स फेल हुए हैं एंड देयर हैव बीन बिग फर्म्स इन्वॉल्व इन दैट ऑडिट। उसके अंदर भी एक मेन रीजन जो सामने है दैट इज द लैक ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दैट मीन टू से कि एज एन ऑडिटर, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे में टेंडेंसी होती है कि जो हमें कोई बात बताए हम ज्यादा होता है यार इसके हम इत्मीनान कर लें, बट ऑडिट के अंदर यू टेंड टू रिलाई ऑन व्हाट पीपल से बिकॉज दैट इज एन इजियर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इफ आई एम an audit client and an auditor comes to me and I say that this is something that's how it is done. Normally, if an audit person would say, okay, he is a very qualified person, he is a old person, he is an experienced person, जो कह रहा होगा वो ठीक ही कह रहा होगा, but that is not always true in that case because at most time
देयर कुड बी थिंग्स एंड देयर कुड बी एविडेंस जो ऑडिटर को शायद लेना चाहिए, जो उस चीज से कंट्राडिक्ट करता है, स्पेशली इन द केस ऑफ एस्टिमेट्स, कि जहाँ पे डिफिकल्ट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ सब्सिडरी आपकी, या आपकी कोई एसोसिएट है जिसको आपने फिर वैल्यू पे अपनी बुक्स में लिया होगा। इन दैट केस देयर आर मेनी सिंपल assumptions जिसकी वजह से वैल्यूएशन कैन गो अप एंड वैल्यूएशन कैन गो डाउन, एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वहां पे देयर इज अ टेंडेंसी कि जो मैनेजमेंट ने किया है दैट समथिंग दैट इज प्रोसेस दैट दे हैव बीन डूइंग इट, but how you have challenged the management, how you have challenged the assumptions that the management is using, how you are challenging the management that the method that they've applied is appropriate. And the consultation requirements, because of the fact that there are very dynamic audit profession and accounting profession in the world, every day there is a new standard. Every day there is a new requirement. Even though there is not a new requirement, there is always a question that what I'm doing is I'm doing the right thing, or is there any other way to do that? So in that case, you have to have a consultation department or a consultation criteria कि जब के लोग कंसल्टेशन कर सके और जो भी कंक्लूजन कंसल्टेशन का आता है वो एग्री होकर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। Difference of opinion that we have tasked. Engagement documentation is appropriate submit on a timely basis or not. ये जैसे समरी ऑफ द ICAP's टूल किट के उसके कंट्रोल क्या है? Person understand and fulfill the responsibilities. ठीक है, इसका कंट्रोल है कि is there any resource plan that has been prepared? कि जब भी कोई ऑडिट होता है उसका एक प्रोजेक्ट प्लान बन रहा है कि नहीं बना है, that is a requirement that is now mandatory after the initiation of ISQM. कि what kind of personnel that I am going to deploy on that audit, क्या टाइमलाइन होगी, किस टाइम पे शुरू होना है, किस टाइम पे खत्म होना है, और वो सारी चीजें आप ऑडिट से पहले अगर पार्ट ऑफ प्लानिंग कर लेते हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल कि वो एक बड़े क्लाइंट के लिए तो शायद इट्स इजी टू मेंटेन, बट छोटे क्लाइंट के लिए देयर इज अ शायद ज्यादा एफर्ट रिक्वायर होगी, बिकॉज इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती नहीं है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन नहीं देता। बट स्टिल इन दैट केस आपको अपने लिए रिसोर्स प्लान तो जरूर बनाना है कि इस ऑडिट पे XYZ personnel are being involved. Do they have the relevant experience, knowledge? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अच्छे ऑडिट कर रहे हैं, उस ऑडिट में टाइम नहीं दे पाएंगे, एटलीस्ट वो काम आप तो कर सकते हैं। जैसे प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ द ऑडिट, ये भी दिस इज अ न्यू थिंग। ये ये है कि आपकी एक रिक्वायरमेंट है ऐसा में कि एंगेजमेंट पार्टनर की, मैनेजर की एक टाइमली इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। बीइंग अ फर्म, कैसे मैं इंश्योर करूंगा कि वो चीज हो रही है और वो डॉक्यूमेंट हो रही है, कि एंगेजमेंट पार्टनर जो है अगर उसको रिक्वायर करना है कि वो प्लानिंग ऑडिट शुरू होने से पहले साइन करेगा, तो वो कैसे हम इंश्योर करिए कि वाकई हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ऐसा कि हम एक बंदा कर रहा है एंगेजमेंट, शायद एक बंदा कर रहा होगा एंगेजमेंट, दूसरा बंदा कर रहा होगा, इट्स नॉट वेरी इजी टू डॉक्यूमेंट। अभी थोड़ा इसकी एक एग्जांपल आई जस्ट शेयर विद यू कि किस तरीके से एक वेरी बेसिक लेवल दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड, कि आप मॉनिटर कैसे कर रहे हैं कि जो बंदा, जिस बंदे का जो काम था, जिस क्वालिटी तो ऑब्वियसली आप इससे चेक नहीं कर पाएंगे क्वालिटी के काम कर रहे, बट एटलीस्ट उसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ से आप मॉनिटर जरूर कर सकते हैं। And again, nature, time and extent of marking requirements, ये भी एक additional requirement that was not there explicitly in ISQC, कि फर्म के पास एक पॉलिसी जरूर होनी चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं एंगेजमेंट के अंदर वो मैंडेटरी हो फॉर सर्टेन पर्सनल टू मार्क। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मटीरियलिटी आप ऑडिट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्म की पॉलिसी है कि आपकी ये मटीरियलिटी, एंगेजमेंट पार्टनर अगर EPCR इन्वॉल्व है
मैनेजर इन सब में इसको साइन ऑफ करना है एज अ रिव्यू मार्क। इसी तरह वो काफी सारी चीजें यू कैन इन्वॉल्व बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक पार्टनर को फाइल के अंदर देखनी चाहिए, साइन ऑफ करनी चाहिए। इन शॉर्ट नॉर्मली दीज आर प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट अदर देन एरिया जहाँ पे देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क और एरिया वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व और कंप्लीशन वाली चीजें जो आपकी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट डिलीवरेबल्स होते हैं। जी अभी तो आपने बात की कि EQCI या पार्टनर को स्पेसिफिक चीजें साइन ऑफ करना जानते हैं। तो फ्रॉम क्लोजिंग द फाइल काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, कोई जनरल गाइडलाइन है जिसको हम फॉलो करें कि कौन सी चीज जो है वो EQCR को और एंगेजमेंट पार्टनर को लाजमी साइन ऑफ करनी चाहिए, कौन सी चीजें, या इसको दूसरी तरफ से देखा जाए तो कौन सी चीजें जो कि EQCR या एंगेजमेंट पार्टनर ना भी साइन ऑफ हो तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मली ये होता है इस गुड क्वेश्चन का कोई जवाब उतना अच्छा आता नहीं है, लेकिन ऐसा के अंदर कोई खास मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि अगर आप ISA 220 देखें कि सिग्निफिकेंट एरियाज और एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट दैट और एनीथिंग एल्स दैट कैन बी of significant importance to the management that has to be reviewed by engagement partner and engagement manager। कुछ चीजें वो कहते हैं कि इसके अंदर engagement partner की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जैसे ऑडिट स्टार्ट होने से पहले रिस्क एंड प्लानिंग डिस्कशन, फ्रॉड की डिस्कशन है जिस तरह, या ऑडिट के अंदर रिस्क एंड क्वालिटी डीब्रीफिंग होती है, उसको engagement partner को होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट हो कैन बी साइड। तो दिस कैन बी a guideline that can be taken, but having said that कुछ चीजें आपको वैसे ही अंदाजा हो जाता है कि आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्योंकि इसके अंदर एक सेट ABCD में इस वजह से मैंने बताने की कोशिश की थी बट नहीं कर पाया, बिकॉज हर फर्म की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फ्लो डिफरेंट है। अगर एक चीज मैं एक फर्म में एक नाम से लिख रहा हूँ तो लाजमी नहीं है कि बी फर्म उसी चीज को, वो ऐसा की रिक्वायरमेंट फॉलो जरूर कर रही होगी लेकिन वो शायद उसको वो नाम नहीं देगी, उसको वो कुछ और बोलती होगी। तो लेकिन हर चीज जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है और जो इम्पोर्टेंट प्लानिंग रिलेटेड चीजें होती हैं वो नॉर्मली ऑडिट पार्टनर को जरूर रिव्यू करनी चाहिए। वैसे भी जो आपके ऑडिट सॉफ्टवेयर है ना, उसमें भी मैंडेटरी साइन ऑफ आए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो पुराना वुड बी मोर सोफिस्टिकेटेड देन अ सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड बाय अनदर फर्म, तो उसमें प्रोबेबली वो ऑटोमेटिकली फ्लैग करता होगा कि ये भी साइन ऑफ करना है। बिल्कुल, वो मतलब जहाँ पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में तो एक सिंगल वन पेज डॉक्यूमेंट होता है, जिस तरह पहले ISQC होता है। बिल्कुल जितने सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं उसमें तो वो खुद रिस्क करके साइन ऑफ करवा। हाँ, वो बेसिकली आप कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि वो बाय डिफॉल्ट है, जैसे उमर बता रही बाय डिफॉल्ट होती है वहां पे, तो वो आ जाता है कि जब तक ये मार्क नहीं होगा ये फाइल क्लोज नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन दिस ये वो हर जगह पे दिस इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि देयर कुड बी मेनी प्लेस जहाँ पे आप फाइल मैन्युअली मेंटेन कर रहे हैं, वहां पे आपके पास फर्म वाइड एक पॉलिसी जरूर होनी चाहिए कि ये बेसिक एरियाज हैं जो हमेशा EQCR या EP को या मैनेजर को साइन ऑफ करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ अगर एरिया मैनेजर के साइन ऑफ नहीं भी है फिर भी देयर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि जिस बंदे ने उसको बनाया है एटलीस्ट उससे एक स्टेप ऊपर के बंदे ने उसको रिव्यू जरूर किया होना चाहिए। खासतौर पे जिस तरह की स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है वहां पे आप स्पेसिफिक चीजों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Exactly. यूनिक प्रोडक्ट है तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे भी बिल्कुल। देखना चाहिए सारा कि कॉस्टिंग किस तरह होगी। एग्जैक्टली, बल्कि इसी में थोड़ा आगे जाके ना कुछ जगह पे जैसे स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड वर्क पेपर होते हैं, तो वहां पे फॉर्म ये कर सकते हैं कि इस वर्क पेपर का फलाना वाला सेक्शन हैज टू बी रिव्यूड बाय दिस पार्टनर एज वेल। ये रिसोर्स प्लानिंग आपके पास ये बजट की रिक्वायरमेंट तो दैट हैज टू बी देयर कि ऑडिट शुरू होने से पहले आप ये जज कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि इसमें कितना रिसोर्स चाहिए होगा अंदाजन,
कितना टाइम लगेगा, किस टाइम पे रिव्यू होगा, किस टाइम पे उसका अप्रूवल होगा, किस टाइम पे सुपरवाइजर रिव्यू करेगा, किस टाइम पे पार्टनर रिव्यू करेगा। और दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट और योर ओन एक्सपीरियंस के इस तरह की एंगेजमेंट्स में अगर वो फर्स्ट ईयर क्लाइंट है, हाउ मच टाइम वुड इट बी रिक्वायरिंग। ठीक है, जो दूसरी बात करते हैं मॉनिटर पॉलिसी और ट्रैकिंग द ऑडिट परफॉर्मेंस with established matrices like milestone और वो पॉलिसी फिर एनुअली रिव्यू होती है कि क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको अगली स्लाइड पे I'll give a brief background क्या है। Marking requirement as Umar was saying कि either it can be built in the software और कोई मेमो हो या पॉलिसी हो जहाँ पे बताया जाए कि ये चीजें आपने मैंडेटरी पार्टनर मैनेजर ने साइन कर दी। ठीक, अभी हम पिछली स्लाइड में जो बात कर रहे थे कि माइलस्टोन्स की पॉलिसी की कैसे आप ट्रैक कर रहे हैं कि एंगेजमेंट पार्टनर्स मैनेजर आर appropriately involved and giving sufficient time to the audit. This is something that we do in our firm. Obviously मैंने इसके ऊपर आगे पीछे चीजें हटा दी। अब relevant metrics क्या है? ये आपके सॉफ्टवेयर में फ्लैग होता है या मेथोडोलॉजी का पार्ट है? This is more of a SOQM methodology. हाँ। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो तो बस ये रिक्वायर करता है कि आपने इसको साइन ऑफ किया है कि नहीं किया, बट टाइमली वाली चीज वो उसका नहीं ट्रैक करता, शायद करनी भी नहीं चाहिए बिकॉज़ इट कुड बी वैल्यूड मैट्रिक्स क्या है। नॉर्मली ऑडिट के अंदर मैंने सोचा क्या चीजें होती है कि आपकी रिस्क असेसमेंट होती है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, प्लानिंग है, मटेरियलिटी है, तो बिजनेस प्रोसेसेस ऑडिट के अंदर करते हैं। फिर आपके रिसोर्स प्लानिंग में आपने ये प्लान करना है दैट इज नीड टू बी डन फॉर एवरी एंगेजमेंट। ये आपके पास डेडलाइन क्या है, आपने अपने लिए क्या टाइमलाइन रखी हुई है कि ये इस डेट को खत्म होना। फिर मैंडेटरी रिव्यू क्या है, जैसे रिस्क असेसमेंट हम की पॉलिसी हो सकती है कि इक्यूसीआर ईपीईएम साइन करेगा, उस सिग्निफिकेंट रिस्क क्या करेगा, प्लानिंग क्या करेगा। और उसके बाद टोटल आर एलोकेशन के आपने कहा कि इस एंगेजमेंट में अगर मेरे 1000 घंटे लगते हैं तो रिस्क असेसमेंट में आपकी किसी के मुताबिक कितने घंटे लगते हैं, आपने कितने सोचा था कि कितने घंटे लगे। और उसके बाद एक है कि दिस माइलस्टोन इज अचीव इन टाइम और नॉट। ठीक है, लाजमी नहीं है कि वो हर टाइम पे अचीव हो, बिकॉज देयर कुड बी सर्कमस्टांसेस कि आपने सोचा था कि रिस्क असेसमेंट में ये उनसे 15 दिन पहले खत्म कर लूँ, लेकिन क्लाइंट का सीएफओ छुट्टी पे चला गया, उसने आपको बोर्ड मिनट्स नहीं दिए, उसने आपको इंटरनल रिपोर्ट्स नहीं दी, उसने आपको इंटरनल अकाउंट्स नहीं दिए, तो आप नहीं अचीव कर पाए। देन यू नीड टू डॉक्यूमेंट इट कि कौन सी ऐसी प्लॉजिबल रीजन थी, वैलिड रीजन थी जिस वजह से ये अचीवमेंट नहीं हुई उसकी। और ये फिर जाके ऑडिट क्वालिटी के जो लीडर है या उसके बाद जाके इट इज मेंटेन्ड एज अ रिकॉर्ड। लेकिन इसकी कोई नेगेटिव बेयरिंग नहीं होगी ना ऑन योर ऑडिट क्वालिटी, और ऐसा अगर आपने जैसे एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं किए और कितने लगेंगे या कुछ, इसका सच कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है? दिस इज फॉर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट, राइट? दिस इज फॉर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट, बट दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी फर्म की पॉलिसी क्या है। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर एक आर्ट के हिसाब से एक चीज है कि नॉर्मली हमारे ऑडिट फी तो आर्ट से रिलेट करती नहीं, दैट इज फिक्स फी। तो उसके लेकिन कुछ जगह पे बाहर भी या कुछ अगर इंटरनेशनल कोर्ट है वहां पे शायद आपकी ऑडिट फी आर्ट से मैटर कर सकती है। उस जगह पे इम्पोर्टेंट इसको मॉनिटर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि आपने जितने घंटे बजट किए हुए थे उतने लगा भी रहे हैं, या अदर वे अराउंड कैसे बोल रहा तो नहीं लग रहे। तो दूसरी ये कि आपने ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जब सपोज प्लानिंग है वो एंगेजमेंट पार्टनर ने साइन करनी थी इस डेट तक। ठीक है, अब इसके अंदर एक फर्म की पॉलिसी होगी कि these are the engagement which are subject to milestone policy. वो हाई रिस्क एंगेजमेंट्स भी हो सकती हैं, वो पाइप भी हो सकती हैं, वो लार्ज भी हो सकती हैं। और उसके अंदर आप एक पॉलिसी दे देते हैं कि दिस इज समथिंग दैट विल बी डन ऑन दिस ईयर, ताकि ऑडिट आपका टाइमली स्टार्ट हो, टाइमली रिव्यू हो, टाइमली खत्म होगा। क्योंकि अगर एक टाइम अज्यूमिंग कि हर चीज टाइमली चल रही है तो इट्स more chance that you will end up having a quality audit than an audit which is not planned properly and executed properly.
For the liability of signing by council, So sir, auditor or political firm sign तो एक पार्टनर करेगा engagement जी सर, इसके अंदर अंडर द आईएसओ सब बेचारा, वही मैंने कहा था, बात गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे। तो अगर कोई क्वालिटी का इशू आता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आईएसओ एंगेजमेंट पार्टनर पे आती है। तो लीगली और थ्रू आईएसओ एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, बट इनफैक्ट अगर एक गलत ऑडिट चला जाता है, एक गलत रिपोर्ट चली जाती है, तो मेरे ख्याल में इट्स एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल फर्म कि किसी न किसी जगह पे कोई चीज गलत हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो एक्चुअली इट्स अ फर्म फेलियर। एंगेजमेंट पार्टनर तो एट फोरफ्रंट है, बट अगर कोई क्वालिटी इशू आता है, और एसओकेएम भी बेसिकली आपको यही कहता है रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आपने शायद उस पार्टनर को इतने रिसोर्सेज नहीं दिए, या आपके क्वालिटी सिस्टम के अंदर कोई इश्यू इतना परवेसिव है जिसकी वजह से दिस क्वालिटी इंसिडेंट हैज अकर्ड। वो भी रेमिडिएशन और मॉनिटरिंग करेंगे तो वहां पे वो ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है। एकदम जितना आपने डिस्कस किया है, स्टॉक वैल्यूएशन पे कोई टच नहीं किया, वेरी मेजर एस्पेक्ट ऑफ द सर दैट कुड हैव बीन इम्पोर्टेंट, लेकिन मैंने सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए लगाया जी जी। cost added, stock valuation and bank confirmation of credit accounts. उसमें कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, इसमें वो शायद इस वजह से नहीं आ रहा कि सिर्फ ये मोटे मोटे एरियाज मैंने इलस्ट्रेशन के लिए डाले थे, लेकिन अगर कोई इसको पॉलिसी को एक्सपेंड करना चाहेगा तो जरूर कर लेगा। मतलब वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लेट्स सपोज मैंने ये किया कि ऑडिट पे जाने से पहले, फील्ड वर्क शुरू होने से पहले मैंने क्लाइंट को कंफर्मेशन भिजवा दी, या अगर मेरा ऑडिट 30 जून का और जुलाई में शुरू हो रहा है तो मैंने ये मेक श्योर कर लिया कि 30 जून पे उसका स्टॉक टेक हो गया है और स्टॉक टेक के डिफरेंसेस आइडेंटिफाई हो गए और क्लाइंट को चले गए, तो वो भी इसमें आप अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से ऐड कर सकते हैं जी। मेथोडोलॉजी वही चल रही है, कास्ट पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू का हाँ जी, ऐसा आज तो वही है, वही चल रही वही, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। है। और ये बैंक बैलेंस जो है डेट अकाउंट्स के, जिनकी स्टेटमेंट नहीं मिलती, क्वेश्चन सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता, इंस्टीट्यूट कहते हैं जी आप बैंक मैनेजर को लिखें, वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को लिखें, फिर ये करें, 2 रुपए पड़े होते हैं उसमें हमारे बुक्स में। वो कहते हैं जिन सबके पास आप जाएं। आई डोंट नो कि आपने कभी फेस किया है इसको। सर इसमें देखिए मेरा अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मैं आप सबसे आई कैन गिव अ वेट, क्योंकि जो आई कैप की टीआर है ना सर, जो बैंक कंफर्मेशन को डील करती है, दैट इज नॉट स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस विद आईएसएस। तो आईएसएस की रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो जैसे आपने बात की ना कि वो 2 रुपए वाली, तो अगर एक बैंक है एक एंटिटी का और वो पिछले 3 साल से डोरमेंट है, तो बैंक तो आपको कभी बैंक इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी बात क्लोज कर चुका है। तो उसको कैसे केटर करना है, तो वो चीजें उसमें चेंजेस की जरूरत है। जो आई कैप की एटीआर नंबर मुझे भूल गया। एक ईमेल आई थी 2 दिन पहले, ई प्लेटफॉर्म फॉर बैंक कॉन्फर्मेशन, दैट्स वेयर दे आर ट्राइंग टू गेट एट। नहीं, उसके अंदर वो कंफर्मेशन उसी तरीके से आएगी, लेकिन एक और चीज भी चल रही है आई कैप के अंदर, जो टीआर है ना बैंक कंफर्मेशन की, उसको भी चेंज किया जाए, उसको भी मॉडर्नाइज किया जाए। उसके अंदर जो इश्यूज सर आप बता रहे हैं वो इश्यूज आते हैं और हर एक को फेस करने पड़ते हैं, तो एक जरूरत है कि आई कैप की टीआर को अपडेट किया जाए। उससे से कोई चेंज नहीं है। जी अब वो हम इम्प्रेशन के बगैर रिव्यू नहीं करते, एक्टिवेट नहीं करते, डायरेक्टर साहब जैसे यूनिटी जाते नहीं बैंक में। हाँ, ये उसमें इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जैसे अमर बता रहे हैं ना कि कल परसों एक सेमिनार था कि अब वो एक आई कैप इनिशिएटिव शुरू किया है, आई होप कि वो फायर तकमील तक पहुंच जाए। वो ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली बैंक को ईमेल कर देंगे, फिर आपको डायरेक्टली जवाब दे देंगे। वो उस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, बट उसके लिए स्टेट बैंक को भी इन्वॉल्व होना है, स्टेट बैंक की कंसल्ट भी चाहिए। हाँ, उस तरह बैंक तो कभी नहीं करेगा क्यों ठीक है। एंगेजमेंट टीम एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, अब वही बात है कि एक चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एंगेजमेंट टीम 4-5 लोगों पे
मुश्तमिल होती है। और एंगेजमेंट टीम के अपने प्रेशर्स होते हैं। जो मर्जी आप कह लें कि एंगेजमेंट टीम को ABCD करना चाहिए इन अ वेरी प्रॉपर वे, एंगेजमेंट के अपने प्रेशर्स होते हैं, एंगेजमेंट्स की अपनी डायनामिक्स होती है, और इसकी वजह से ऑलवेज अ रिस्क एंगेजमेंट टीम को जो काम करना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं कर पाए। इट इज नॉट ऑलवेज ड्यू टू द फैक्ट दैट एंगेजमेंट टीम डिड नॉट नो कि वो ये करना है, लेकिन वो शायद किसी वजह से भूल गई, उन्होंने किसी वजह से नहीं कर पाई थी। तो उसी चीज को याद दिलाने के लिए एक पॉलिसी होगी कि आप कुछ एंगेजमेंट्स में या तो EQCR रख लेंगे, या आप किसी एक पॉलिसी बना लेंगे कि ये मेरी रिस्क एंगेजमेंट्स हैं, इसको एक एंगेजमेंट टीम से इंडिपेंडेंट बंदा उसकी ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करे, ताकि जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो एंगेजमेंट टीम, क्योंकि मोस्टली एंगेजमेंट टीम इज अंडर द प्रेशर टू कंप्लीट द एंगेजमेंट, कि आपको 4 महीने के अंदर AGM करनी है, और 7 अगर 30 जून को ऑडिट है तो 7 अक्टूबर से आगे आप ऑडिट रिपोर्ट को नहीं लेके जा सकते। तो एक प्रेशर होता है एंगेजमेंट टीम पे काम खत्म करने के लिए। तो उसी में सेकेंड रिव्यू और पीयर रिव्यू रिक्वायरमेंट कि एक इंडिपेंडेंट बंदा एंगेजमेंट टीम से या डॉक्यूमेंटेशन देख ले उसकी, और उसको बता दे कि भाई ये चीज आप मिस कर रहे हैं, इसको आप काइंडली ऑन अ टाइमली बेसिस देख लें। And this consultation and pre-issuance review requirement, वही मैंने कहा ना, engagement team is not expected to know everything. There will already be something that is contentious. जैसे सर ने going concern की मिसाल दी कि he was in a kind of a fix कि किस तरह की रिपोर्ट दी जाए, तो उसी चीजों में केटर करने का रिक्वायरमेंट है कि कंसल्टेशन के एक इंडिपेंडेंट बंदा जो एंगेजमेंट टीम से इंडिपेंडेंट है और नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस है, और उसको ये उससे डिस्कस किया जाए एंड एक कंक्लूजन रीच किया जाए, ताकि उसके बाद जो है फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ फर्म जो स्मॉल साइज की है, कि उनके भी रिक्वायरमेंट है, दे हैव टू हैव either they can combine together with other firms and have their own department, and also दूसरी बात ये है कि consultations डिपार्टमेंट के बाद एक कंसल्टेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए। कंसल्टेशन पॉलिसी मीन्स कि कौन कौन से कंसल्ट एरियाज हैं जहाँ पे तो फर्म को मैंडेटरी कंसल्टेशन करनी है। वन एग्जांपल कुड बी कि जहाँ पे भी देयर इज अ रीस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, there could whenever there is a qualification in the financial statement, whenever there is a new standard is applicable, these kind of examples जहाँ पे फर्म अपनी कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर सकती है और फिर मेक श्योर करना है कि वो कंसल्टेशन पॉलिसी। लीगल मैटर्स में इस तरह के होते हैं कि समटाइम्स लॉयर एग्जैक्टली डिस्कस किया, आप कंपनी के जो लीगल एडवाइजर है उसके साथ आप मैटर्स डिस्कस करते हैं, you get a better understanding, बिल्कुल। वो भी सारा दैट। हाँ, लेकिन कंसल्टेशन में अब एक फर्क ये है कि कंपनी के हिसाब से, क्योंकि अब जो कोड ऑफ एथिक्स नया आ रहा है ना, दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2026, उसके अंदर जो कंसल्टेशन जिस बंदे ने किया दैट इज पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड। दैट मींस से दिस पर्सन विल बी इक्वली अकाउंटेबल इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग विद एंगेजमेंट। सो वो क्लाइंट में फिर आप उस तरीके से नहीं कर सकते, ऑल्दो दे आर स्पेशलिस्ट, बट लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए हाँ वो कर सकते हैं, समझ आ गया। लेकिन आप अपना अगर लॉयर करेंगे तो वो फिर कंसल्टेशन में आ जाएगा, क्लाइंट वाला आपका इंक्वायरी में आ जाएगा कि आपने इंक्वायरी ली और उससे अंडरस्टैंडिंग ली। एंड अगेन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन आईसा के मुताबिक असेंबल हो रही है, उसके बाद इज एंगेजमेंट टीम साइन ऑफ कर रही है, ताकि एविडेंस हो कि एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो रिटेन हो रही है दैट इज एविडेंस फॉर रिव्यू एंड सुपरविजन। मिनिमम लीव रिक्वायरमेंट्स कि किस किस ने किस किस टाइम पे रिव्यू करना है, और एंगेजमेंट इन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, दैट मीन टू से कि रिटेंशन भी आपके पास है, कितने अर्से तक रिटेन करनी है, कितने अर्से तक रिटेन नहीं करनी, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द लॉज एंड रेगुलेशन। ऑल्सो समटाइम्स जब आप किसी से कंसल्टेशन करते हैं या आप एंगेजमेंट EQCR आपने इन्वॉल्व किया था, तो कुछ जगह पे there could be differences of opinion. Engagement partner is a senior responsible person. He has his view.
whenever consultation comes in consultation में अगर difference है तो engagement partner might say that के तुमने तो ABC facts consider ही नहीं किए हुए. If you consider these, शायद your opinion would be different. So in that case अगर लड़ाई हो जाए या difference of opinion हो जाए तो you have to have a policy and just for benefit of the audience, this is a mandatory part of audit documentation under the ISAs कि engagement partner को ये sign करना पड़ता है कि all differences or opinion between the engagement team were resolved. Either they were not, they didn't come up. If they come up, the engagement partner sign करता है audit documentation में, that is a mandatory part of ISAs. So one way or the other, you have to get it. Exactly. वही बात है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मस्ट कैप्चर. मैं बात करूं कि दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू. ठीक है, EQC की पॉलिसी वी हैव डिस्कस, विल नॉट गो इनटू द डिटेल. सो दैट्स एनी क्वेश्चन. Perfect. तो इसके लिए आई थिंक जैसे मैंने कहा ना कि मैंने खाने के बाद स्टार्ट किया तो देयर इज ऑलवेज अ बिट ऑफ थिंग, बट you will have my email, you will have my cell number after that. So anything that you think that we have not covered in this workshop, you can always sort of contact and we can have a chat. Thank you. Thank you.